hello friends, you are most welcome and warm welcome here in IS. And today here we will see, and I am Abdul Sabir, and here we'll see the topic and in detail and deep study the paper 4 ethics. That is paper 4 ethics. So basically, today's topic is about to introduce you regarding the topic paper 4 ethics paper. Simple, what is the idea about this paper? What is the idea about this paper? What the UPSC is expecting all about this paper? So we will discuss in detail the strategy, how to approach this paper, and we will see and analyze through the various question papers and how to develop a certain level of understanding about this paper. So let's start the very basic concepts and very basic thing at the name of the topic itself, that is ethics, integrity and aptitude. Ethics, integrity and aptitude. एथिक्स को हिंदी में एज सच वी कॉल इट नीति शास्त्र. Ethics we call it as नीति शास्त्र. And integrity, सत्यनिष्ठा. Whereas aptitude is अभिव्यक्ति. अभिव्यक्ति. So नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा and अभिव्यक्ति. This is the title of fourth paper. Okay. So we analyze. We analyze why this paper name has been kept as ethics. See the very simple concept. Aptitude. We'll see this ethics. What is the ethics is? What is the ethics in general mean? See, ethics is nothing but it's related to analyzing the principles and beliefs about the society and the religion values, personal norms, etc. So ethics is basically analyzing principles, society, institute, and religious norms. So this is ethics, which basically deals with how we analyze these the basic established basic principles and reach to the conclusion where it is good or bad in terms of behavior of the individual. मनुष्य के जो व्यवहार है उसमें जो चीज़ें होती है, जो मनुष्य जो एक्शन करता है, जो कर्म करता है, वो अच्छा है या बुरा है, इस चीज़ को सिद्धांत के आधारित पे जो अध्ययन करता है एथिक्स, वो नॉर्मेटिव साइंस के कंटेक्स्ट में this is the simple meaning of the ethics. We will go in detail when we will come into the topic as unit 1 of the ethics, integrity and aptitude. But simply you need to understand this is what the, whereas integrity simply is related, it's related with the human that's unit society. सोसाइटी का जो यूनिट है, ह्यूमन है, पर्सन की, इससे ये इंटीग्रिटी का रिलेटेड है. इंटीग्रिटी एज सच तो ये बहुत ही वास्ट इसका मीनिंग है, वेरी complex phenomena. It's a very complex phenomena, but it's in terms of here we simply see that it's a persons, in terms of persons, manner, it has various dimensions. It has various dimensions. It can be various in terms of manner can be, manner could have various dimensions in terms of uprightness, further maybe sincerity, likewise charity, likewise. So ethics is basically related to
analyzing the concept at broader level. Integrity is related at individual level. Okay, at individual level. Whereas aptitude is more or less is a static phenomena. Static phenomena. It has to do with natural traits we have. Natural traits we have. For instance, it deals with what kind of thought process you have. Person's thought process. Person's thought process. Behavior. Okay, aptitude is more or less is a natural process. It can be changed. It can be changed using past experiences, past experiences, rigorous skills, training. But in general, aptitude of a person really is static. It remains throughout the life with. So in order to relate these things, you first aptitude is more or less related to this cognitive process, thinking process of a person, this internal process of a person. Then integrity is nothing but a reflection of that internal process, what you think in terms of your manner or conduct. So this is how we can relate aptitude with integrity. Aptitude with integrity, what you think, what your cognition process is actually is being reflected in terms of integrity. Now integrity, that is person's manner or conduct, is being judged by the ethics, being judged by the ethics through the principles and the analyzing the existing principles of that particular conduct or the manner. So in simple way, this is what explanation about the topic or relation of these three terms. As such, the topic is ethics, integrity, aptitude, but in general, it's a wide concept. A wide concept. For example, we see if we see at the syllabus of the topic, if we see at the syllabus of the topic, there are various other chapters such as emotional intelligence is there, probity is there, governance is there. So क्वेश्चन इज क्या इफ सिलेबस में जो इतना ढेर सारा टॉपिक यूपीएससी ने दे दिया है, बट दे आर मेंशनिंग द थ्री नेम्स ओनली, व्हाट इज द रीजन? क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी एक मतलब बकेट में ढेर सारी चीज़ें ऐसे ऐसे डाल दी गई है और उसको नाम दे दिया गया ऐसा ऐसा? हाँ, कुछ इस तरीके से ही है डेफिनेटली। एथिक्स का जो पेपर 4 है, जो इसका नाम दिया गया है, कुछ इस तरीके से ही है। बट इसको अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ऐसा ही क्यों नाम दिया गया। सपोज यू हैव अ दिस इज द पॉट, समथिंग यू कैन कॉल इट बकेट। बकेट में क्या है कि आपके पास वेरियस थिंग्स हैं। सपोज फ्रूट्स हैं इसमें, मे बी फ्रूट्स हैं इसमें, वेजिटेबल्स भी हैं इसमें, स्पाइसेस भी हैं इसमें, ऑयल भी है इसमें। बकेट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। बट इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वेजिटेबल और फ्रूट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मली हम इसको कह सकते हैं कि ये फ्रूट और वेजिटेबल्स की बकेट है, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बकेट है। सो सेम हैपन्स विद द केस ऑफ दिस पेपर 4। पेपर 4 कंप्राइजेस वेरियस थिंग। यूपीएससी ने क्या किया है कि जब पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एथिक्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कि उनके जो पे एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनके अंदर कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ऑलरेडी दे शुड हैव बीन इनकलकेटेड सम काइंड्स ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, एथिकल कॉम्पिटेंस, ये चीज़ें उनके अंदर होना चाहिए। तो यूपीएससी ने क्या किया, कुछ टॉपिक्स यहाँ से, कुछ टॉपिक यहाँ से, कुछ टॉपिक यहाँ से, उसको उठा करके एक जगह पे कलेक्टिवली जो है उसको एथिक्स पेपर 4 के रूप में इंटीग्रेट किया है, जिसका नाम उन्होंने
एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रखा है। सो आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड दो इज द नेम ऑफ द पेपर, बट in general it has certain wide connotation. When you study throughout the syllabus, then you understand, yes, there is some topics which cannot be fitted in the ethics, integrity. Okay, so next things we will see now. Okay, so next topic is next thing which we are going to discuss is why this paper of ethics, integrity and aptitude was introduced. Why this paper was, see, if you see the history of certain this UPSC CSE, so in general फर्स्ट टाइम अगर ब्रॉडर रीस्ट्रक्चरिंग अगर कभी हुआ था यूपीएससी का सिलेबस में, देन इट वाज इन 1978 थ्रू रजनी कोठारी कमेटी, इट हैपेंड इन 1978 रजनी। उसके बाद से देयर हैज़ बीन सर्टेन चेंजेस, स्मॉल चेंजेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस, बट ब्रॉडर रीस्ट्रक्चरिंग जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, particularly in the context of 1991 LPG reforms and various other developments that happened in the country, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था यूपीएससी को कि एकोमोडेट करे वेरियस चेंजेस, न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स को सिलेबस में, but certain other things, certain other committees which have been related with suggested same reforms were such as Libran committee was there, one which suggested broader restructuring of UPSC syllabus. Libran committee was there. Then further Hota committee recommendation were in the same print. Apart from all these things, there was second ARC report. Second ARC report came up with the very comprehensive and very illustrative mechanism as to what to do in terms of the updation in the requirement of the civil services values, particularly the 10th report. Second ARC, particularly the 10th report. So in the light of these developments, UPSC came up with the idea of updating this paper, that paper ethics 4 was introduced. Also there were certain suggestions were coming from academy, that is Masuri Labasna Academy, कि आप जिन फ्रॉम टू दे यूज टू राइट टू यूपीएससी की जिन सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स को आप भेज रहे हैं, हालांकि उनके अंदर क्वालिटी तो है, अच्छी क्वालिटी तो है, दे हैव गुड स्ट्रेंथ एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, बट इन जनरल दे लैक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मोरल कॉम्पिटेंस जो होना चाहिए सिविल सर्वेंट के अंदर, दैट वाज एक्चुअली लैकिंग। तो जो बहुत सारे इन रिकमेंडेशंस के बाद यूपीएससी केम अप विद द आइडिया इन 2013, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी ब्रॉडर रीस्ट्रक्चरिंग किया यूपीएससी के सिलेबस में। अब हम समझते हैं कि देखते हैं इनको कि ये सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली इन रिपोर्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद और डिफरेंट पॉइंट्स को आर्ग्यू करने के बाद वी कैन से कि यूपीएससी का जो पैटर्न है इनको चेंज करने का, UPSC what did with in terms of this syllabus was in right direction. सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव कंटेस्ट में जैसे कि बहुत सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स वेर एसोसिएटेड विद द सिविल सर्वेंट, सच एज कि ब्यूरोक्रेट जो है लेस इज अ करप्ट, कई तरीके के फिर रिजिड है, तरीके से वेरियस अदर इशूज वर रिलेटेड विद द सिविल सर्वेंट। सो पेपर 4 जो है वो इन चीज़ों को कब करने में, मोरल कॉम्पिटेंस को जनरेट करने में विल हेल्प ऑल आउट। दैट्स व्हाई दिस पेपर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में भी इट हैज़ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि एथिक्स का जो पेपर है, एथिक्स का पेपर जो है वो जज करता है
आपके इंडिविजुअल थिंकिंग कैपेसिटी पे जो क्वेश्चंस यूपीएससी में नॉर्मली आते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने अगर यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा, अगर केस स्टडीज़ वो देते हैं तो उसमें दे आस्क कि व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट विल बी योर व्हाट विल बी योर एक्शन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। उसमें आपको वो कभी सिविल सर्वेंट बना के रखते हैं, कभी किसी कॉरपोरेट में मैनेजर बना के सिचुएशन को देते हैं। तो इन जनरल हम ये समझ सकते हैं कि एथिक्स का जो स्कोप है, एथिक्स की जो ज़रूरत है इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में, वो यही है कि अपना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मस्ट चेंज, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी चेंज पर्टिकुलर in with related to this morality and ethical values. इसके अलावा it has certain other instances, for instance at individual level we also react with friends circle. As a social being we react with friend circle. We have certain obligation in the family. Then we have a association with the society. So individual at a time has to act in multi-dimension. Okay, so in this context, if they do not have the ethical value or ethical competence, how they are going to face the dilemma in this situation? Definitely they are going to face dilemma in such situation. So in terms of individual, in context of individual, of ethics is very important. Also there are situations such as where we used to deal with various things, is very important. In above all these things, जब हम पेपर 4 को अच्छे से स्टडी करेंगे, जब we'll go by various units of 7 units of this ethics paper, we will find कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको हम लोग अभी तक मान तो रहे थे कि हाँ ये सही है, बट भी दे विल प्रूव टू बी रॉन्ग। में भी कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम पढ़ने के बाद चीज़ों को समझेंगे उनकी एथिक्स के कंटेक्स्ट में। वी विल रिलेट विद द इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, जो इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड है उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमको इसमें सीखने को मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस आप किसी पॉलिटिकल न्यूज को जो है आप देखते हैं, फॉर इंस्टेंस आप किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम लेते हैं, गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी को आप एनालाइज करते हैं। जब आप किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को एनालाइज करते हैं, जब आप किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को एनालाइज करते हैं तो जनरली आप पाते हैं कि नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, पॉलिसीज के टूवर्ड्स या तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव होते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव होते हैं। फॉर इंस्टेंस दे विल टॉक दिस पॉलिसी इज़ एक्सट्रीमली बैड, और या फिर ये कहेंगे कि दिस पॉलिसी इज़ एक्सट्रीमली गुड। तो एथिकल कंटेक्स्ट में जब हम आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो एकदम से ये नहीं कहते यस और नो। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वेरियस डायमेंशंस उसका एक्सप्लोर करते हैं, वी मे रिलेट इट विद वेरियस एथिकल थियरीज, मोरालिटी एंड एथिक्स। तो उस बेसिस पे वी गो एंड सी द प्रोज एंड कॉन्स of particular policy, and then we come to a conclusion which is more balanced instead of extremism. Okay, so ethics का जो है as such society पे religion and institution पे से जो individual is related has very huge impact on various dimensions of the society. So after this we'll move to the next thing is why
what should be the strategy and how to approach ethics paper. See, initial few slides मैंने यहाँ पे ये डिपिक्ट करने की कोशिश किया कि what all about the introduction of the paper, but from now onwards I will focus on how to approach on paper. पेपर पे कैसे अप्रोच करना है, आपको आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. इफ योर स्ट्रैटेजी इज गुड एंड गाइडेड बाय द करेक्ट अप्रोच, द result could be very positive. See, starting from very basic thing, I will share one thing here, very common thing. Actually, here we at Manoj IAS start the things very basic, from very basic. At least आप कह सकते हैं कि हम चीज़ों को हम जीरो से शुरू करते हैं. हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग भी वीडियो देख रहे होंगे जो जिनको साल और 1 साल और 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा तैयारी करने की जो है आइडिया होगा. बट वी थिंक कि अगर एक भी बंदा जो जीरो से देख रहा है, जो अभी स्टार्टिंग जिसकी शुरुआत है, उसको उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हो जो उसको समझ में ना आए. फॉर इंस्टेंस आपको मैं कुछ एक यूपीएससी के जीएस पेपर्स के बारे में पहले एक आइडिया देता हूँ, फिर मैं स्ट्रेटजी पे डिस्कस करूँगा. यूपीएससी का जो यूपीएससी के जो 4 पेपर्स हैं जीएस के, 4 पेपर हैं जो जीएस के, अगर इस एग्ज़ाम में सीएसई एग्ज़ाम में आपको आईएएस की रैंक लेना है, आपको आईएएस की रैंक पाना है और आप जनरल की कैटेगरी में हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको आईएएस चाहिए. अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको आईएएस चाहिए तो जीएस पेपर जो चारों पेपर है का कंबाइंड मार्क्स आपको मिनिमम 400 तो लाना ही पड़ेगा. मिनिमम 400 प्लस तो आपको लाना ही पड़ेगा. नेक्स्ट पेपर एक होता है इसमें एसे का, एक पेपर होता है इसमें जो डेफिनेटली 250 मार्क्स का होता है. और अगर इसमें जिस लेवल का कंपटीशन अभी बढ़ चुका है, जिस लेवल का ऐसे लोग अभी लिखते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन में, अगर आप इसमें कम से कम मिनिमम 140 प्लस मार्क्स आपको आज के कंटेक्स्ट में, और विद टाइम इट विल इंक्रीज ओनली, अभी एटलीस्ट आपको 140 मार्क्स ऐसे में एटलीस्ट लाना ही चाहिए. देन कम्स टू द पेपर ऑफ ऑप्शन. ऑप्शनल पेपर में अगर आपको आईएएस चाहिए और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको मिनिमम 300 मार्क्स तक ले ही आना पड़ेगा. दिस हैज़ बिकम न्यू नॉर्म. ये एक नया नॉर्म सेट हो गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको आईएएस चाहिए तो 300 नंबर मिनिमम आपको लाना होगा. सिमिलरली इंटरव्यू में आपको 160 से लेकर के 180 मार्क्स तक मिनिमम ले ही आना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी इन कॉम्पिटिशन. तो एज सच वी कैन से कि somewhere 1015 plus we are reaching, 15 plus we are reaching. So if you want to get IAS rank you need to achieve. तो यहाँ पे एथिक्स पेपर का रोल आता है, यहाँ पे एथिक्स पेपर का बहुत ही ज़्यादा रोल आता है. फॉर इंस्टेंस अगर आप जीएस के बाकी तीनों पेपरों की बात करें, तो इसमें हर पेपर में 100 नंबर ले आना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. अगर आप 100 नंबर 100 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड मार्क्स. बट और इसके साथ साथ अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो और 100 मार्क्स अगर आपके आ गए, इसका मतलब फॉर द लायन आप शेर हैं, जनरली आप शेर हैं. क्योंकि आप पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का पहली चीज़ तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं वो कम है, और इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट मार्क्स जो स्कोर करते हैं बच्चे उसमें भी इंग्लिश मीडियम है. तो मेरा मतलब यहाँ पे डीमोटिवेट करना, डीमोरलाइज करना आपको नहीं है, बट आपको एटलीस्ट जो है रियलिटी मालूम होना चाहिए, सो दैट योर स्ट्रेटजी एंड अप्रोच बी अकॉर्डिंगली इन दैट डायरेक्शन. ओके, आपको मिनिमम इस पेपर में 300 मार्क्स जो है
फॉर इंस्टेंस इन जनरल होना चाहिए। बट मान लीजिए आपकी कुछ प्रिपरेशन में कमी होने की वजह से आपका जो है 90 मार्क्स और समवेयर 95 के आसपास ऐसे आपका मार्क्स आता है। ओके, ऐसे आपका मार्क्स आता है, तो यू कैन मैनेज इट बाई एथिक्स पेपर, यू कैन मैनेज इट बाई एथिक्स पेपर। एथिक्स पेपर के अंदर वो कैपेबिलिटी है, एथिक्स पेपर के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये आपको उस लेवल तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर आप पिछले साल के मार्क्स की बात करें या फिर आप जो है टॉपर्स की अभी तक के हाईएस्ट की जैसे कि मार्क्स करें, तो ये तो पिछले साल 2019 में तो लोगों ने एथिक्स पेपर में तो धूम ही मचा दिया था। ठीक है, किसी का मतलब 100+ मार्क्स तो जैसे कि फ्री में बढ़ रहे हों, इस तरीके से था। तो कहने का मतलब ये है कि इस पेपर में लोग मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। पीपल हैव स्कोर्ड अप टू 150+ इन 2019। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एथिक्स पेपर में जैसे कि यहाँ पे जो है 100 मार्क्स की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन हैव 50 मार्क्स का मार्जिन, अप टू 50 मार्क्स का मार्जिन वी कैन हैव इन दिस पेपर। इट इज़ अप टू 50 मार्क्स का मार्जिन इन दिस पेपर। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा बताने का जो मेन मोटो है इज़ दिस कि एथिक्स पेपर हैज़ दैट पोटेंशियल। इफ़ यू फेल टू डू स्कोर ऑप्टिमम मार्क्स इन दिस फर्स्ट 3 पेपर ऑफ जनरल स्टडीज़, you can cover it through the ethics paper. This is the potential of the ethics paper. So okay, now we'll see some we will see some the ratio of this input output model of this ethics paper 4 कि हमारे लिए ये कितना इनपुट और आउटपुट के कंटेक्स्ट में कितना इजी है और कितना कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। If you see the syllabus of the ethics paper, see the syllabus of the ethics paper, बाकी के 3 पेपर्स के कंटेक्स्ट में इसका सिलेबस छोटा है और द क्वेश्चंस द यूपीएससी विच आस्क इज आल्सो लिमिटेड इन कंटेक्स्ट। अभी तक पर्टिकुलरली 2013 टू 2016 जो नेचर था यूपीएससी के पेपर का, वो नॉर्मली जो टर्म्स जो उसमें दिए हुए थे, जो कॉन्सेप्ट उनको दिए हुए थे, उससे वो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन की बात करता था। बट सिंस द 2013 ऑनवर्ड्स द थिंग्स आर अंडर द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इवॉल्विंग। चीज़ें कंटिन्यूअस इवॉल्व ही कर रही हैं, वो पीछे नहीं जा रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है 2019-18 में, और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुछ क्वेश्चन के जो है वो बहुत ज़्यादा भी पूछ रहे हैं, वेरियस डायमेंशन ये भी पूछ रहे हैं। बट एज सच इन जनरल इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर पेपर्स, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू टेक द पेपर वन, पेपर वन का सिलेबस सिंपली थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, वी विल नॉट गो इन डिटेल। पेपर वन का हैज़ वेरियस टॉपिक्स सच एज modern India, then world history, then post independence, consolidation. Then we have art and culture. Okay. Then definitely we have geography. Then we have in geography also we have various dimensions. Similarly we have society. और हर टॉपिक के लिए you need to study at least NCERT and basic book. You need to study NCERT and basic, and even these topics are very vast. The topics is not as explicitly mentioned in ethics paper. These topics are very vast. These topics are generally very vast, and UPSC asks very in-depth and diversified questions. But this is not the case with the ethics paper. If you see this ethics paper,
syllabus which will go, we will just discuss in next slide. But in general, ethics paper, normally students in general what do, they have a dictionary, which is famously known as lexicon, plus news, plus news. So normally student will go this very general terms, and they score normally 90 and 100 marks. Okay, so here what I wanted to mention is, अगर इस पेपर में जनरल एटीट्यूड के साथ जा करके वी कैन स्कोर समवेयर 100 मार्क्स, तो वाई विद नॉट स्पेसिफिक प्रिपरेशन वाई कैन नॉट बी अचीव सम 140 प्लस मार्क्स. Okay, so why cannot we achieve this 140 plus marks in each paper, which is not very much difficult? Agar we can approach with the simple this lexicon and newspaper, we are scoring this 75 to 90 marks, 75 to 90 marks. Why can't we do this same in 140 plus marks? Okay, so see why, what is the reason I will tell why the normally students जो है स्कोर इतना जो बिना जिनका जो मेंस नॉर्मली स्टूडेंट्स लिखते भी हैं, दोज हु राइट द मेंस एटलीस्ट, दोज हु राइट द मेंस but do not qualify, maybe they don't qualify, they secure normally 75 to 90 marks, and those who qualify 100 plus. तो दिस इज़ व्हाट नॉर्मली जब स्टूडेंट्स जो है पेपर देते हैं, लिख के आते हैं, तो डिस्कशन के बाद ये चीज़ें पता चलती है कि आप एक नॉर्मल एक जनरल एटीट्यूड से जा करके अगर 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो इस पेपर का जो स्कोप है, इस पेपर का जो पोटेंशियल है, इज़ मच मोर कंपेयर टू आपका जीएस का बाकी पेपर. तो दिस इज़ व्हाट द सिंपल कॉन्सेप्ट एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि अगर एथिक्स पेपर में एक राइट अप्रोच और सही स्ट्रेटजी, गाइडेड स्ट्रेटजी अगर अपनाई जाए, तो ये जो लैक्यूनास हैं को यूज़ करते हुए वी कैन स्कोर अप टू 140 प्लस मार्क्स, वी कैन स्कोर अप टू 140 प्लस मार्क्स इन दी एथिक्स पेपर. ओके, नेक्स्ट प्लीज. तो क्वेश्चन नाउ इज ऑल अबाउट कि हाउ अगर ऐसा है सिस्टम वी कैन स्कोर अप टू 140 प्लस मार्क्स, तो जनरली व्हाई दिस डजंट हैपन, व्हाई दिस डजंट हैपन कि आर रेंज ऑफ 75 टू 90 मार्क्स. द क्वेश्चन इज कि किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए, किसी भी पैटर्न को फॉलो करने के लिए जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट होता है इज़ द डायरेक्शन यू आर गोइंग. और किसी भी डायरेक्शन को आप जज करने के लिए कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो यूपीएससी का या उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उससे आपको ओवर थ्रू होना, या फिर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस सब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कहने का मतलब है कि जब आप सिलेबस देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करते हैं, उस बेसिस पे जब स्ट्रेटजी और अप्रोच को अपना तय करते हैं, then it determines how you are going to do the things. So in this slide we will see this is the general studies paper for ethics, integrity and aptitude. What UPSC says about the paper, what UPSC expect you टू अंडरस्टैंड अबाउट द पेपर. यूपीएससी आपसे क्या उम्मीद करती है कि आप पेपर के बारे में कम से कम इतना तो जरूर समझें. ठीक है, जिसको हम बात करते हैं जिस चीज़ पे, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड अप्रोच टू इश्यूज. हियर दिस नीड्स टू इन अ वेरी ब्रॉडर कंटेक्स्ट रिलेटिंग टू द इंटीग्रिटी, probity in public life, and his problem solving approach to various issues
and conflicts faced by him dealing with the society. See, few words: aptitude of the candidate and his approach relating to the integrity and probity. Now the question is issues related to integrity and probity. Issues related to integrity and probity. So UPSC is not limited to integrity and up to probity, but the issues related to the integrity and probity. Understanding my point? Issues related to integrity and probity as whole. Okay, so apart from that, public life, his problem solving approach to various issues, his problem solving problem solving approach to various issues. So the syllabus which has been mentioned, कई बार क्वेश्चंस जो है सिलेबस के बाहर से पूछे जाते हैं. मेनी क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड आउट ऑफ द सिलेबस. हालांकि वी कैन नॉट से कि ये आउट ऑफ द सिलेबस हैं. हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, बट they have implicitly been expected from you to understand about the topic. It may be related to probity, integrity, or some public life issues which are directly not mentioned in the syllabus. The UPSC nowadays are more and more questions they are asking which is not explicitly mentioned in the syllabus. आप अगर 2013 से 2016 का अगर आप एक जनरल पैटर्न देखें तो यूपीएससी उस टाइम क्या करता था कि जो बेसिक सिलेबस में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जो टर्मिनोलॉजी दिए हैं, उसी के आसपास वो घूमता था. बट द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. अभी यूपीएससी क्या करता है, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा उसका फोकस रहता है. चीज़ों को वो करंट इशूज से रिलेट करके वो पूछता है, चाहे वो सोशल इशूज़ के, पब्लिक लाइफ के क्वेश्चन हो. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो हैं, जो सिलेबस में मेंशन है, उनको वो डिफरेंट इश्यूज जो हो रहे हैं उनसे रिलेट करके चीज़ों को पूछता है. तो और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में दिस पेपर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर एनालिटिकल, मोर एंड मोर conceptual based, and the things as of now is going to be more complex. This has to be clear in the mind. The kind of the way the UPSC is evolving in terms of UPSC paper 4, definitely they will reach some kind of height where at least the loopholes which currently students have in scoring 100 up to 150 marks. Generally students score 120 plus marks in ethics paper. So this loophole which students generally have, definitely this will reduce in coming period, maybe 3 year. ये ऐसा हम लोगों का एजम्पशन है. वेरियस काइंड्स ऑफ पेपर्स को देखते हुए एक ऐसा एजम्पशन है कि यूपीएससी विल डेफिनेटली रीच टू द सर्टेन पॉइंट. तो इन जो ये चीज़ें हैं, it says what all about the UPSC expect from you while you dealing with the questions. In Hindi it says कि ethics, integrity और aptitude के इस पेपर में परीक्षार्थी की तर्क शक्ति, उसके दृष्टिकोण की परीक्षा होगी. परीक्षार्थी की तर्क शक्ति और उसके दृष्टिकोण की परीक्षा होगी. यानी कि एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी एंड इज प्रोबिटी. परीक्षार्थी अपने सार्वजनिक जीवन में कितना ईमानदार है, दैट्स प्रोबिटी एंड इंटीग्रिटी. और उसमें कितनी सत्यनिष्ठा है, ठीक है. प्रश्नों के माध्यम से इसकी जांच की जाएगी. परीक्षार्थी को कई ऐसे सवाल दिए जाएंगे जिनमें सार्वजनिक जीवन के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने की उनकी क्षमता की जांच की जाएगी. तो ये बेसिकली लास्ट लाइन जो है वो, उसमें आखिरी वाली जो लाइन है उसमें वो केस स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कुछ केस स्टडीज़ के थ्रू जो है चीज़ों को सुलझाने की उनकी क्षमता की जांच की जाएगी. तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन विच यूपीएससी इज मेंशनिंग हियर इज मोर इम्पॉर्टेंट और यू कैन से इज इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट वी गो थ्रू द सिलेबस. सिलेबस को जितना पढ़ना और सिलेबस को समझना जरूरी है, उतना ही इस इंस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है. नॉर्मली स्टूडेंट्स इस पढ़ते नहीं हैं और इसको इन डेप्थ समझते नहीं हैं. जब तक इस इंस्ट्रक्शन को नहीं समझेंगे आप डायमेंशन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं. वेरियस थिंग्स को आप वेरियस डायमेंशन में और चीज़ों को इंटर रिलेट करना मुश्किल होगा. आप सिलेबस पढ़ोगे, आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यू मे मेमोराइज द थिंग्स,
but how to relate the things, what are the demand of the pattern of the question, you need to come to know to through this section of the UPSC. Okay. So next things is, here we will discuss the syllabus of the UPSC. What the UPSC is generally talk about the syllabus. ये syllabus का जो एक 2013 में जो इन्होंने syllabus दिया था, अभी भी syllabus UPSC का is the same, but the nature of the questions what they are asking has been evolving from year by the year. Okay, so the question is why should we know the syllabus, why should we study or analyze the syllabus. See, the किसी भी चीज को, for instance, you are standing here and this is the goal, this is the goal, this is the path, this is the path to reach the goal. Suppose this is the path to reach the goal. Okay, now some students will reach to the path like this. Okay, some may move like this, but they will reach to the path. Or you can say some will like this, like this, like this, like this. They reach the path. Again, some may move like this, like this, like this, like this. They also may reach the goal. But there are some students who will move like this, like this, like this. There are some who will move this like this, like this, like this, and they distract from the goal. So in general, what I wanted to convey here, the path mean is the UPSC syllabus. The path mean is the UPSC syllabus and the question paper. आप जब किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहते हैं, आप जब कहीं कुछ चीज़ों को स्टडी और एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फिक्स डायरेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा कोर्स आप ट्रैवल करेंगे. ठीक है. तो यूपीएससी इन जनरल जो है प्रोवाइड्स यू सिलेबस में आपको इस कंटेक्स्ट में स्टडी करना है, क्या करना है, इस चीज़ों को आपको समझ में आता है. दूसरी चीज़ कि अगर आप सिलेबस सपोज आपको मालूम है, तो अगर आपको सिलेबस मालूम है तो चीज़ें जो सोसाइटी में हो रही हैं, फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट विच इज़ हैपनिंग, you will be able to relate those topics with the issues which is happening in general in the current affair, particularly with the current affair. Or if you know the syllabus, you can relate those topics with your personal behavior, with your personal attitude, with your personal honesty, with your personal values which you have in your own self. Okay, once you able to relate these things, you will be much more better position to write the answer. Unless and until you don't understand the syllabus properly, unless and until you don't understand the values which you have in build, you will not be able to relate the topic and yourself. The UPSC's demand is not about the understanding and only understanding and memorizing and writing the syllabus, unless and until you don't relate it with yourself, unless and until you don't put yourself into the syllabus. You are the main driver of the syllabus. Unless and until you don't sit on the front seat of the car, your syllabus is nothing. Your syllabus is nothing. It is you who has to drive through the syllabus. इसका मतलब ये है कि चीज़ों को आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, अपने कंटेक्स्ट में उसको समझना पड़ेगा. आपने इसके पहले जब हमने इंस्ट्रक्शन की बात करी थी, सिलेबस के इंस्ट्रक्शन की, तो उसमें यूपीएससी कुछ भी नहीं बात कर रहा है. यूपीएससी इज सेइंग अबाउट यू, ओनली इज सेइंग कि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है ये XY Z, दिस एंड दिस एंड, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है. व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी, ओके, दिस थिंग्स आर द कांस्टेंट, दिस विल कीप हैपनिंग, बट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट योर व्यू इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स. सो दिस विल कम with when you understand the syllabus. Once you understand the syllabus, once you understand the concepts, basic concepts of the syllabus, you will try to understand yourself more. क्योंकि ethics का जो पेपर है, एक्चुअली जब आप इसको चीज़ों को पढ़ेंगे तो कई सारे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी. इससे कई सारे वैल्यूज़ जो न्यू, फॉर इंस्टेंस
आपको मैं कुछ चीज़ें जैसे कि बताना चाहूँगा कि नॉन वायलेंस आपने सुना तो बहुत होगा, गांधीयन कॉन्सेप्ट है, but certain aspects of non-violence. For instance, there are positive as well as negative as view of non-violence. For instance, non-violence मतलब कि हमको किसी चीज़ को हार्म नहीं करना है. फॉर इंस्टेंस एनिमल्स को हार्म नहीं करना है. फॉर इंस्टेंस जो है प्लांट्स को हार्म नहीं करना है. दिस और एक्सेट्रा ये, और क्या बोलते हैं, वी कैन से कि ट्रीटिंग गुड विद ह्यूमन बीइंग, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. दिस इज द एनिमल एंड प्लांट्स इज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन वायलेंस, जो हम जिन चीज़ों को हमें करना ही नहीं चाहिए. बट देयर आर सर्टेन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉन वायलेंस सच एज कि आप somebody hates you, or but you have positive feeling, still you have positive feeling about him. For instance, somebody has harmed you, but still when you're thinking about that person, you pray goodness for him. This is the positive concept of the non-violence. So normally people know only this negative concept of non-violence. Similarly, there are a lot of concepts such as tolerance is there, इंटीग्रिटी इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. सो जब आप चीज़ों को सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो इन सब बहुत सीखेंगे. बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आएंगी आपके लाइफ में कि जब आप स्टूडेंट से डिस्कशन करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करेंगे, तो आपके जो व्यूज़ होंगे दैट विल बी मोर फिलोसफिक इन नेचर. यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द थियरीज ऑफ वेरियस स्कॉलर्स. या जब आप एथिक्स में, हम लोग जब अभी एथिकल थियरीज पढ़ते हैं, तो देर आर वेरियस स्कॉलर्स वी स्टडीज. एक स्कॉलर हैं इमैनुअल कांट. तो ही इज़ वेरी his position in the subject of ethics or philosophy in general, you can say, is very high. He is very respected and reputed scholars. So his concept is basically is related with the means and ends, means means and end, which we will discuss कि जो है हाउ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये कांट सीज की ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमन बीइंग एंड एंड मीन्स का पहले कॉन्सेप्ट आपको जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सिंपली आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर कि चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं होंगी जो आपको सीखने को मिलेगा. बहुत सारी डिस्कशंस और डिबेट जिसमें आप एकदम सिंपल आर्गुमेंट यूज़ करते हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस विल लर्न अ लॉट. और फिर यूपीएससी का सिलेबस और उसमें एग्जाम में तो डेफिनेटली दिस इज टू हेल्प अ लॉट. ओके, so we will see syllabus and see its explanation in very small explanation. We will see one by one, so that at least before starting the syllabus, at least we must know what are the basic elements of this syllabus, what are some small meanings, so that once overview or internal idea could be developed about the topic. So first thing, this paper 4 of ethics is comprises of 250 marks. 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, और को सॉल्व करने के लिए आपको बाकी के पेपर्स की तरह 3 घंटे का टाइम होता है. और जनरली ये सेकेंड हाफ में पेपर होगा, क्योंकि यूपीएससी के 4 जीएस के जो पेपर होते हैं, पहले 2 पेपर फर्स्ट हाफ में होते हैं, 2 पेपर पहले फर्स्ट दिन जो है एक पेपर फर्स्ट हाफ में होता है, दूसरा है. ये चीज़ें आपको मालूम होगी, बट स्टिल वी बिलीव कि देयर आर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं को देख रहे हैं तो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं. तो हम जब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाते हैं तो ऐसा चीज़ हमारे दिमाग में होता है कि किसी भी स्टूडेंट के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन या इस तरीके की फीलिंग ना आए कि नहीं नहीं ये तो बहुत अप स्टैंडर्ड या बहुत हाई लेवल का चीज़ें पढ़ा रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी लूसिड एंड वेरी नॉर्मल. चीज़ों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा. वी हियर एट मनोज IAS टू टीच द थिंग्स अ वेरी सिंपल एंड लूसिड मैनर, सो दैट कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं. ओके, तो कम टू दिस डिस्कशन ऑफ द सिलेबस. ओके, first this unit, the ethics paper has 7 units general. Okay, 7 units of the topics of the theory, and 8th unit is the case study.
8th यूनिट इज़ द केस स्टडी। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट के 7 यूनिट्स हैं उसमें बेसिकली यूपीएससी ने कुछ सिलेबस को रखा है, जैसे कि एथिक्स पेपर का एक थियरी पोर्शन है किसी भी ऑप्शनल की तरह या किसी भी और सब्जेक्ट की तरह जिसका कुछ बेसिस होता है, उसी तरीके से एथिक्स पेपर 4 का भी बेसिस है, एथिक्स पेपर 4 की भी थियरी है, जिसको यूपीएससी ने फर्स्ट टू उसमें रखा है। दिस यूनिट एंड दिस यूनिट, जनरली दिस इज द वन यूनिट। एक्चुअली मैंने डिस्कशन को आसान करने के लिए इसको अलग कर दिया, अदरवाइज दिस यूनिट इज द वन यूनिट। Okay, that need not to be confused much. And second concept is the contribution of the moral thinker. Second unit is this. Okay, so the first and second unit is the nothing but the theory of the ethics paper. मतलब इसका ये है सिंपल, आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट को। अगर आपको एथिक्स पेपर में अच्छा करना है, एथिक्स पेपर में स्कोर ज़्यादा ले आना है, 140 का अगर प्लस का अगर आपका टारगेट है, तो एथिक्स पेपर की जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं, जिसको एथिकल थियरी सिंपली कह सकते हैं, उस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना ही चाहिए। अगर ये 2 यूनिट आपके क्लियर नहीं है तो आप बाकी के जो यूनिट्स हैं उसको अच्छे से नहीं समझ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी सिलेबस का जो थियरी पोर्शन होता है वो बेस होता है और बाकी चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर होती हैं, बाकी सुपरफिशियल होती हैं, बाकी सरफेशियल होती हैं। तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है, बाकी चीज़ों का भी इक्वल रेलेवेंट है, बाकी चीज़ों से इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट थियरी पे फोर्स मैं इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि जो थियरी है उसके बेसिस पे अगर आप बाकी की चीज़ों को रिलेट करके आंसर लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो है विल बी मच मोर बेटर। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बहुत जनरलाइज आंसर लिखते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर सिटीजन चार्टर पे आंसर आता है, सिटीजन चार्टर पे लिखने का क्वेश्चन आता है, तो दे विल राइट पेपर 2 जनरल स्टडीज का। ओके, सिमिलरली इफ आरटीआई पे क्वेश्चन आता है, दे विल राइट जनरल पेपर 2 का जो है आंसर वो लिख के आएंगे। तो जब आप अगर एथिक्स का क्वेश्चन में एथिक्स का पेपर आ रहा है तो यू हैव टू राइट इन एथिकल कंटेक्स्ट। एंड अगर नहीं लिखते हैं एथिकल थियरीज को रिलेट करके अगर नहीं लिख पाते हैं, फिलोसोफर्स की आइडियाज़ को लिख करके रिलेट करके नहीं लिख पाते हैं, वेरियस यूनिट्स को इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं, तो आपका आंसर विल बी कंसिडर्ड एज जनरल आंसर। एंड स्पेशलाइज आंसर में कम से कम 2 से 2.5 मार्क्स का डिफरेंस होता है। ये 2 से 2.5 मार्क्स का डिफरेंस है। अगर आप पर क्वेश्चन इमेजिन 2 मार्क्स आपके कम होते जा रहे हैं, तो तब आप सीधे 40 मार्क्स से तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड, जब व्हेन वी स्टार्ट द टॉपिक, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ थियरी पोर्शन, एंड विदाउट दिस इज ethics paper cannot be handled easily. Without discussion of this proper understanding of the first and broader understanding, I will say, we cannot understand the okay. So we will see, यहाँ पे हम थोड़ा सा टॉपिक का एकदम सिंपल एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा डिटेल और डीप में डिस्कशन हमको यहाँ पे नहीं करना है। बेसिकली मैं सिलेबस को एज सच डू नॉट वांट्स टू डिस्कस, क्योंकि सिलेबस इज़ नॉर्मली अवेलेबल इन यूपीएससी वेबसाइट और आप उसको इजीली आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली रिपीटेशन ही होता है, बट एज सच इट्स अ फॉर्मेलिटी एंड आई हैव टू डू फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हु आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट दोज हु आर सम एक्सपीरियंस कैंडिडेट दे कैन वेट। नेक्स्ट स्लाइड में उनके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लेकर आया हूँ, शायद इस चीज़ों को देख के आपको काफ़ी अप्रिसिएटिव होंगे आप। तो वी विल सी इट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स। Ethics, first topic is ethics and human interface. Ethics एंड उसका ह्यूमन से क्या इंटरफेस है, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एथिक्स का प्लस ह्यूमन से क्या रिलेशन है, इज द नेम ऑफ द टॉपिक। ठीक है, इसमें इसेंस, फर्स्ट टॉपिक इज द इसेंस का मतलब होता है कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स द दिस एथिक्स, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एथिक, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ethics, what are the basic elements of the ethics. Essence में what we do,
कि वी जनरली एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज सच एज, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं एथिक्स के, जैसे कि जस्टिस हो गया, जैसे कि जस्टिस हो गया, जैसे कि लिबर्टी हो गया, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट हो गया. These are the topics which are abstract. These are the topics which are abstract in nature. So theorizing these topics is nothing but the essence of the this ethics. Okay, determinants. What are the determinants of the what are the determinants of the ethics is we are going to discuss here. See, ethics ethics has determinants of ethics in a particular society has various dynamics, and it has various factors that determine the ethics, such as religion, in particular, that societal values, societal norms, culture, individual perceptions, etc. बहुत सारे factors हैं जो define करते हैं determinants which determines the ethics in particular, morality और ethics in particular that society. For instance कि वेस्टर्न अगर सोसाइटी की हम बात करें तो वो इंडिविजुअलिज्म और मटेरियलिज्म को ज़्यादा फोकस करते हैं. इंडिविजुअल एंड मटेरियलिस्टिक द पीपल ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी जैसे कि वो बात करते हैं. बट इन इंडियन कंटेक्स्ट और ईस्टर्न सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, एंड कलेक्टिविज्म और फ्रेटर्निटी की बात ज़्यादा, इसमें कलेक्टिव और ब्रदरहुड की बात ज़्यादा होती है हमारे सोसाइटी में. सो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट्स which can vary from society or country or culture, etc. Next is the consequences of ethics in human action. So this is general thing. What अगर जो ethics है उसको हम फॉलो करते हैं, morality अगर हम उसको morality को फॉलो करते हैं तो उसके consequences हमारे एक्शन में क्या मैनिफेस्ट होगा. This is what this is talking about. Okay. Similarly in हिंदी कि आपका सार क्या है, एथिक्स का जो सार है वो क्या है. फिर निर्धारक तत्व जैसे मैंने कि डिस्कशन किया है कि रिलीजन हो गया, सोसाइटी एंड कल्चर एक्सेट्रा, फैमिली वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज़ें जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक्सेट्रा, ये चीज़ें निर्धारक हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं एथिक्स के लिए. सिमिलरली वैल्यूज फ्रॉम द ह्यूमन वैल्यूज. व्हाट आर द वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, वेरियस वैल्यूज सच एज लव, केयर, compassion. These are the human values, universal values. Okay. So lessons from the lives of and the teaching of the great leaders. Here you need leaders, farmer, लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर का जो है रोल क्या है. लीडर्स कैन बी सच एज महात्मा गांधी, reformers can be such as Swaminathan, Varghese Kurian. So these people, what the role of these people is in society. Okay, in context of developing human values, इनका जो रोल क्या है वो क्या है. यूपीएससी नॉर्मली क्या करती है इस कंटेक्स्ट में कि कुछ लीडर्स के जो आइडियाज़ होते हैं वो दे देती है, और यूपीएससी विल गिव द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज़ ऑफ द लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स एंड विल आस्क टू एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट द थिंग्स which generally UPSC does illustrate, explain, critically analyze like that. So I have a special slide for this perspective which I am going to just discuss. कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं कि सर लीडर्स, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एज सच तो यूपीएससी ने मेंशन किया नहीं है ना सिलेबस में, इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन. तो इसका मतलब दिस ये जो लिस्ट है, ये कैन बी वेरी इनएग्जॉस्टिव इन नेचर. तो जनरली ऐसा है नहीं कि ये लिस्ट जो है इनएग्जॉस्टिव, ऐसा है नहीं. देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स, देयर आर सर्टेन थिंकर्स विच जनरली यूपीएससी आस्क एंड रिपीटेटिवली आस्क. मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए और अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी को डेवलप करते हुए कि यूपीएससी ने अगर इन लीडर्स और इन रिफॉर्मर्स को पूछा है तो आगे क्या वो पूछ सकते हैं और कौन से रिफॉर्मर्स को वो पूछ, एक लिस्ट बनाई है जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा. तो नेक्स्ट इज रोल ऑफ फैमिली. ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होने में फैमिली का क्या रोल है, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सोसाइटी, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
educational institution in inculcating values, educational institutions inculcating values, यानी educational institute जो हैं उनको values के inculcate करने में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर इंस्टेंस स्वामी विवेकानंद ने जैसे कि कहा था एक वो कि इफ़ यू वांट्स टू मेक अ सोसाइटी मोरल और वैल्यू रिच यू हैव टू दिस कैन बी डन easily through the teachers and the teachers and suitable that what you call it syllabus or curriculum of the education, means teacher and curriculum of the education. So Vivekananda talk about this educational talking role of the values. तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जब हम चीज़ों को ये एथिकल थियरीज का जो फर्स्ट 2 चैप्टर है इज मोर बेस्ड ऑन द थियरीज। थियरी का मतलब यही है कि जो टॉपिक्स हैं उसको वेरियस स्कॉलर्स के जो बेसिक व्यूज़ हैं उससे आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, सच एज सोसाइटी के बारे में कुछ वेरियस व्यूज़ जैसे कि गांधीयन व्यूज़, जैसे कि इमैनुअल कांट का व्यूज़ है, यूटिलिटेरियन थियरीज क्या कहती हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थियरीज क्या कहती हैं, इन चीज़ों से रिलेट करके जब हम सोसाइटी को लिखते हैं देन इट ओके थिंग्स विल बी डिस्कस इन द कमिंग डेज। उस हिसाब से चीज़ें आसान होती अभी ज़्यादा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि मीन्स एंड यूटिलिटेरियन तो आप लोगों को थोड़ा ऑड लगता होगा, बट दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट और द थियरीज ऑफ दिस पेपर। और इसको अगर एक बार अगर आप समझ लेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको दोबारा जो है कहीं और जो है लेक्चर वगैरह नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड द फिलोसफर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स फिलोसफर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस है कि सर फिलोसफर्स ऑन मोरल थिंकर्स तो इनएग्जॉस्टिव लिस्ट होगी, इसमें यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि इसमें तो बस इन्होंने ये कर दिया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर, तो इस वेरी इनएग्जॉस्टिव लिस्ट। तो जनरली ऐसा है नहीं, अगर आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें तो नॉर्मली यूपीएससी हैज आस्क्ड 7 to 8 और यू कैन से 8 or 9 फिलोसफर जनरली 2013 to 2019। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को वो रिपीट करते हैं और डेफिनेटली दे विल रिपीट ऑन फर्दर दिस। फिलोसफर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक उन्होंने पूछा है कि प्लेटो के बारे में, प्लेटो के व्यूज़ के बारे में पूछा है उन्होंने, अरिस्टोटल दे हैव नॉट आस्क्ड प्रोबब्ली, प्लेटो दे हैव आस्क्ड, Socrates they have asked, Immanuel Kant they have asked, and John Rawls' theory of justice they have asked, Mahatma Gandhi definitely they have asked, Kautilya they have asked. So they ask the questions which are more you need not go to over reach of the boundary. Similarly कुछ questions ऐसे भी यूपीएससी पूछते हैं जिसपे अभी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको स्कॉलर्स का नाम नहीं भी पता है बट द कंटेंट इज गिवन, क्वेश्चन इज गिवन, यू कैन हैंडल दोज क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन आइडियाज फर्दर बिफोर। इसके हम क्वेश्चन सिलेबस को और ज़्यादा आगे डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं कुछ स्कॉलर्स और जो मोरल थिंकर्स हैं जिनको मैंने प्रिपेयर करा है पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको मैं पहले आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ सम वेरी इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके बारे में आप थोड़ा सा डील कर सकते हैं। इसमें से कुछ हैं टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, दूसरे कलर में किया हुआ है, जैसे कि सोक्रेट्स हो गया एंड दिस okay, then Plato they have asked, Plato they already have asked, they can ask this Aristotle is very important thinker and philosopher. It's better ऐसा कहा जाता है ना कि यूपीएससी before यूपीएससी ask you should be prepared for those things. अगर यूपीएससी ask then you prepared is of no useless. So at least you need to have certain cognition in your mind what could be the basic scholars and philosophers which could be asked. Then J.S. Mill is there, Immanuel Kant is there, John Rawls, Kautilya, Rousseau, Mahatma Gandhi, Aurobindo, Dayanand Saraswati, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Rabindranath Tagore, then Narayan Guru. So further you need to have this M.N. Roy's idea, Ram Manohar Lohiya's idea, APJ Abdul Kalam definitely they have asked, then Nelson Mandela's, Bose,
Mother Teresa, Vivekanand, Ambedkar, Sardar Patel, Deendayal Upadhyay. Further, you can extend these lists. You can extend this list. You may include Swaminathan or Varghese Kurian, etc. like that. But this list is not inexhaustible. Okay, this list is not inexhaustible. Further, once you have prepared at least this much of the topic, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है. एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सम, जैसे गांधीयन कॉन्सेप्ट जो है, जो है 4-5 उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं. जब हम गांधी के फिलोसफर्स पढ़ेंगे, उसको थियरी को डील करेंगे, तो हम उसको देखेंगे कि कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं गांधी जी के, अगर उसको हम क्लियर कर लेते हैं तो दिस थिंग्स बिकम्स इजीली मैनेजेबल. और इतने अगर स्कॉलर्स अगर आपने तैयार कर लिया है तो डेफिनेटली एक आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा. फिलोसोफर के बारे में लिखने का एक जो इंटरनलाइज व्यू होगा वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा. तो ऐसा उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एटलीस्ट आप इतना ही प्रिपेयर कर लें, विल बी मोर इनफ. फर्दर क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं तो आपको मालूम ही नहीं है, उस स्कॉलर और मोरल थिंकर का व्यू आपको पता ही नहीं है, बट क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड. तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे. जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा है, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, यू लुक फॉर people to hire, you look for 3 qualities: integrity, intelligence and energy. 3 things. Looking for the qualities. You are looking for the 2 qualities while you hiring. If they do not have first means integrity. If they do not have, 2 will kill you. अब यहाँ पे इसको किस कहा है? वॉरेन बफेट ने. अब वॉरेन बफेट में भी यू डू नॉट नो यू नेवर हर्ड अबाउट द वॉरेन बफेट. सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन इज, आई विल elaborate in a very integrity is saying this, intelligence, plus का मतलब दिस इज द गुड quality. This is the good quality, expecting these values. Now minus integrity from this, minus integrity from equals to, this is was the essence of the question कि अगर आपके पास ये 3 वैल्यू हैं तो गुड क्वालिटी मिलती है. अगर आपने इंटीग्रिटी हटा दिया तो एवरीथिंग बिकम्स जीरो, कुछ भी नहीं है. अब ये वॉरेन बफेट कह रहे हैं, आई एम सेइंग रिमूव दिस वॉरेन बफेट नेम, पुट एनी एक्स नेम और वाई जेड एनीबडीज नेम. कैन यू नॉट हैंडल दिस क्वेश्चन? तो क्वेश्चन इज दिस कि चीज़ें आपको यू हैव टू टेक द थिंग्स इजीली. एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे बाउंसर्स आएंगे जो आपको हो सकता है पहले आपने रीड नहीं किया हो, बट यू कैन हैंडल इवन दोज क्वेश्चंस इफ यू आर वेल मेंटली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड. फॉर इंस्टेंस जैसे इसके पहले मैंने कुछ स्कॉलर्स का नाम आपको बताया था. अगर एटलीस्ट आपको उतने स्कॉलर्स के नाम पता हैं, एटलीस्ट आप उतने स्कॉलर्स के नाम जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेशन आपके पास है और थोड़े से उसके व्यू हैं, हैंडल द क्वेश्चन. ओके, सिमिलरली एक क्वेश्चन ये है कि if country is a corruption free and is to be corruption free and become nation of a beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal member who can make difference. They are the father, teacher. Okay, 3 things: father, mother and teacher. They play important role in the development of the society. This is the what question is all about. Now have been said by the Abul Kalam into 2017. This question has been asked. Remove this name of Abdul Kalam. Okay, can you not handle this question? Easily you can handle. Simply 3 things you need to elaborate it. So thinkers and administrators वाला जो question है, you can elaborate. You need not much worried about कि ढेर सारे thinkers और के बारे में पढ़ना है. ठीक है. अब एक क्वेश्चन फिलोसफर का आया था 2018 में. ओके, 2018 में, falsehood takes the place of truth when it results in unblemished harm. Tirukural. अब you will say Tirukural is a Tamilian philosopher and moral thinker.
नाउ यू विल से कि सर अब हमको तो तमिलियन फिलोसफर और थिंकर पढ़ना पड़ेगा या और बंगाली फिलोसफर और थिंकर पढ़ना पड़ेगा और एंशियंट इंडिया के वेरियस थिंकर्स को जो है स्टडी करना पड़ेगा, बट थिंग्स इज दैट, चीज़ें ऐसी नहीं है। तिरुकुराल 2018 का अगर आप वो देखें, इकोनॉमिक सर्वे में जो है एक क्वेश्चन पूछ दिया हुआ था, उस इकोनॉमिक सर्वे एक्सप्लेन किया हुआ था कि इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में उन्होंने काफ़ी बोला था कि हाउ लेजिटिमेटली मनी को कैसे अर्न किया जाए ताकि सोसाइटी में आप अपना पॉजिटिव, और उसको रिलेट गया था कि हमारे एंशिएंट सोसाइटी में भी ओपन एंड फ्री इकोनॉमी की बात बहुत ज़्यादा होती थी। तो कहने का मतलब है कि वो तिरुकुरल वाज इन न्यूज़ एंड हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। तो ऐसा एक दो स्कॉलर साल भर में ऐसे होंगे जो न्यूज़ में होंगे, उनको आप अगर लगता है इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ आप you can handle the questions easily. And even some questions of philosophers you cannot handle blindfoldedly. For instance, ये वाला question है, you need to have certain idea of Thirukural about for writing this question. Particularly philosophers के case में you need to have some basic aspects of what philosopher is has. What are the basic premises of that particular philosophy? Then only you can fetch good marks. Here in case of Thirukural, you need not be worried about. UPSC generally asks the Plato, Aristotle, John Rawls, Max Weber, Mahatma Gandhi, Kautilya, etc. UPSC much more limited to these boundaries only. Okay. So we will move to syllabus again. Okay. Next topic is the attitude. Topic is the attitude. Okay. So attitude में what we have to study? Content. What are the content of the attitude? Structure of the attitude. Functions. Attitude के जो functions हैं हमारे behavior में, वो we'll study, and its influence and relation with the thought and behavior. ठीक है, जो behavior और हमारा जो thought है, सोचते कुछ हैं but करते कुछ हैं. We do something else, we think something else. There is a difference in the action and the thought process. So why this is the difference? Why this actually happens? तो है हम इसको attitude से, ठीक है. And moral and political. This is the important topic. Moral and political. UPSC starting में has not asked this question, but nowadays every or day after year they ask question political attitude. And another important topic is the social influence and persuasion. This is the very important topic. UPSC का जो केस स्टडी का पूछने का जो दायरा है has been more or more limited to the civil services values, etc., public service values, etc., but they have now entered to this area also, social persuasion of. UPSC जो केस स्टडी पूछती है वो जनरली लास्ट यूनिट से ज़्यादा पूछती है, सेकेंड लास्ट यूनिट से ज़्यादा पूछती है, बट दे हैव now they are increasing different unit to ask questions from case studies of. अब ये भी हो सकता है कि they can ask from this type of उसको वो थियराइज करके केस स्टडी में रख दें और आने वाले टाइम में वो पूछना शुरू कर दें, ठीक है. नेक्स्ट इज द एप्टीट्यूड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्विसेज. एप्टीट्यूड फॉर द फाउंडेशनल वैल्यूज. एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड जैसे कि हमने एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की एप्टीट्यूड है, तो इसमें इसका बेसिक फंडा ये है कि आपका जो बेसिक नेचर है, कंपोनेंट, आपका जो कंपोनेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी है किसी इसके बारे में, जो आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, दिस इज़ व्हाट द एप्टीट्यूड. फिर फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं जैसे कि इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टिजनशिप है, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ठीक है. इन टॉपिक्स पे जो है काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछता है. रोल ऑफ द सिविल सर्विस इन द पब्लिक स्फीयर, इस तरीके से करके दे हैव बीन आस्किंग, ठीक है. 2019 में भी उन्होंने सिविल सेवा के लिए मनोवृत्ति और मूलभूत मूल्य, जिसमें वेरियस वैल्यूज सच एज वी हैव डिस्कस्ड हियर, निष्पक्षता, ईमानदारी, पक्षपात रहित होना, वस्तुपरकता, जन सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, सहिष्णुता और दया इत्यादि. फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंटेलिजेंस है.
Emotional intelligence actually basically it's nothing but combination of two word emotional plus intelligence. इमोशनल का मतलब इंटेलिजेंस का मतलब होता है इज रिलेटेड विद माइंड, एंड intelligence is related with mind, and emotional is related with heart. Is related with heart. So emotional intelligence is nothing but the balance and combination of mind plus heart. Mind plus heart means emotional intelligence. What do you think? What are the your emotions? How rationally and how rationally you are able to control and manipulate those emotions is what the emotion. ठीक है. This topic is very good and very useful for the UPSC students, particularly in terms of psychological aspect. कई बार क्या होता है कि नॉर्मली हर इंसान के लाइफ में ऐसा होता है कि देर आर अप्स एंड डाउन्स में, देर आर डाउन्स. ये टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस है. आई विल सजेस्ट कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो एक बार इसको आप पढ़ें. ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग देता है चीज़ों को लॉजिकली सोचने के बारे में. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली और रैशनल होकर सोचने के, आपकी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, चीज़ कैसे, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देता है. और फिर इसमें कॉन्सेप्ट इसका हम देखेंगे, देयर यूटिलिटीज़, एप्लीकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस. ठीक है, these are the things this topic. Next is the public service, public civil service values and ethics, public administration. Okay, यूपीएससी बेसिकली जो केस स्टडीज पूछता है वो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज आर फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. ओके, मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली. के बाद वो पूछते तो सभी जगह, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स दे कैन आस्क केस स्टडीज विच दे आस्क दिस यूनिट. एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? स्टेटस. व्हाट इज द स्टेटस? देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? Various problems we will analyze. Then ethical concerns and dilemmas in government, private ethical concerns, dilemmas. So laws, rules and regulation. Concern. Four things. Regulation as source of ethical guidance. Laws, rules, रेगुलेशन एंड सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस के बारे में गांधी जी कहते हैं कि कंसाइंस का सिंपल मतलब ये होता है कि समथिंग यू आर डूइंग इज लीगली यू आर डूइंग, बट व्हाट यू आर डूइंग morally you are not compatible with legal. Morally your moral says, your conscience, internal conscience, legally okay I am doing this, but ethically or morally this is not at par with. So when such situation is generated, is nothing but a crisis of. Okay, so conscience के बारे में गांधी जी says कि when there is a crisis situation, you must listen to voice of. Okay, then accountability and जैसे काफी क्वेश्चन, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, स्ट्रेंथ ethical and moral values in governance, and various. So इसमें we will see the various ways and means how we can see values in governance. Okay. Now ethical issues in international relation, in funding, corporate governance. Okay, UPSC does ask a lot of questions corporate governance and international. This ethical issues in international relation and funding. इसमें वेरियस इश्यूज आर इन्वॉल्व कि डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो डेवलपिंग नेशन को फंड देते हैं अपने इंटरेस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको वो इन्फ्लुएंस करने के लिए, पर्टिकुलरली छोटी छोटी इकोनॉमी को कंट्रोल इनडायरेक्टली करने के लिए फंडिंग करने का कई सारे एथिक्स इन्वॉल्व हैं. तो हम डील में डिस्कस, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइमेटिक इशू, ठीक है, ट्रेड, दोहा डेवलपमेंट, कई सारे इशू
तो ये चीज़ें हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। प्रोबेबिलिटी इन जनरल कि you are sticking to highest principles and ideals while in the process or system। okay? आप इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब आउटकम से नहीं होता है। इट इज रिलेटेड विद द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग इज up to the mark, up to the established standard। that is what probability all about। जी, नाउ वील सी, इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी पब्लिक सर्विस। ओके, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो फिलोसॉफिकल बेसिस है, इस बेसिस पे वेरियस थियरीज जो एथिक्स की वो क्या कहती हैं, उनको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, गवर्निंग, राइट टू इंफॉर्मेशन। हर दूसरे ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेश्चन एवरी ईयर दे आर आस्किंग early days। code of ethics there is, and then code of conduct, code of ethics and code of conduct। code of ethics and code of conduct में यूपीएससी जनरली आस्क द डिफरेंस, पहले स्टार्टिंग में इन्होंने डिफरेंस कंपैरिजन स्टेप से पूछा है, बट विद द चेंजिंग एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ आस्क क्वेश्चन यूपीएससी, हम ये कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स हाउ दे आर related। how if the code of conduct is declining, what will be the impact on the code of ethics, or a code of ethics is declining, what will be the impact on the code of ethics। या फिर ये कह सकते हैं कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट कैसे मोरालिटी और एथिकल वैल्यूज को सोसाइटी में री इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अप्लाइड एस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में देखेंगे। ओके, फिर सिटीजन चार्टर है। सिटीजन चार्टर नॉर्मली क्या होता है, यूपीएससी व्हेन आस्क्स सिटीजन चार्टर, तो स्टूडेंट्स जनरली राइट पेपर 2 का आंसर। ओके, so when you write the paper 2 ka answer, and very good you write, you include all dimensions, but you writing in the context of the paper 2, you are not, you keep your one thing in, will not get good। citizen charter is particularly here you need to write in context of the 4 or ethical and context। if you are writing, then only you are going to get the good mark। okay, then work culture, you quality of the service delivery, then utilization of the public fund, utilization of the public, challenges of the corruption। challenges of corruption में normally we will see the, पहले तो corruption की normally they have written simply challenges of, but the questions have been also related to the corruption concept, their theoretical basis of the corruption as well they have asked। इसके अलावा जो कुछ स्टेट पीसेस हैं, दिस वाज द सिलेबस, और केस स्टडीज ऑन द अबव इश्यूज, केस स्टडीज ऑन द अबव इश्यूज means they can ask the case studies on the any of the these। now something we will see this first unit, and this part belongs to ethical theory course। in UPSC syllabus this has been mentioned in 5th or 4th, but I have got it at 2nd so that we can understand it more or assimilative man। then this attitude, then aptitude and emotional intelligence, this second and third unit, this is basically nothing but psychology in context of society plus administration। It is not psychology, it is not explicitly psychology, cannot say कि ये psychology ही है, but it is the psychology in context of administration
एंड next topic, next two concepts are nothing. These are nothing but the combination of various subjects, combination of various subjects such as public administration, such as the PubEd, the school science, प्लस फिलोसफी का भी काफ़ी है इसमें, प्लस सोशोलॉजी। दिस ये सिलेबस को मिला करके, ये जो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं वो मैनेज किया गया है। ठीक है, सो बेसिकली आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक तो हो ही गया होगा कि ये टॉपिक है। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कशन करना चाहूँ कि सिलेबस तो आप नॉर्मली पढ़ते ही हैं, सिलेबस आपने देखा भी होगा यूपीएससी की वेबसाइट पे या फिर नॉर्मली अवेलेबल ऑनलाइन ऑफलाइन। बट द क्वेश्चन इज़, क्या आप सिलेबस पढ़ने के बाद उससे आप क्या इंटरनलाइज करते हैं, आप उससे क्या ग्रेस्प होता है, आपको क्या चीज़ें आपको क्या समझ में आती हैं। दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। नॉर्मली आई डू नॉट वांटेड टू डिस्कस द क्वेश्चन बट द सिलेबस, particularly I wanted to discuss syllabus in a different manner. Okay, I do not wanted to repetition of these things. So in that context मैंने कुछ इसी सिलेबस में से मैंने कुछ टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट किया है, जो सिलेबस में मेंशन्ड, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड जो टॉपिक्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको मैंने अलग किया है। और फिर उसको एक ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये आपके पास एक अलग से पेपर में आप इन चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं और उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो फिर उसके बाद वील डिस्कस ऑन दिस। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि टॉपिक्स ये जो हैं यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन हैं, यूपीएससी की ये सिलेबस में मेंशन है। आप जनरली सिलेबस पढ़ते हैं एक बुकिश लैंग्वेज में, आप पढ़ते तो हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं या चीज़ें याद नहीं रहती हैं उसमें। तो इसलिए मैंने आपको आसानी के लिए इस तरीके का सिलेबस बनाया हुआ है। इसमें आप जैसे कि वेरियस टॉपिक्स हैं, फॉर इंस्टेंस एथिक्स, एक्शन, ह्यूमन वैल्यूज, लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, फैमिलीज, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एटीट्यूड, बिहेवियर, moral would be political and moral attitude, social influence, persuasion, aptitude, integrity, impartiality, then non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, then tolerance, okay, compassion and emotional intelligence, thinkers, ethical concerns and guidance, dilemmas, laws, regulations, accountability, governance, probity, and this public service. Next is okay, public service, RTI, transparency, code of ethics, code of conduct, then citizen charter, work culture, service delivery, public fund, corruption. So these are the topics. These are the topics mentioned in the syllabus. ये आपके सिलेबस में टॉपिक्स सेंटेंस के फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैंने इनको एक्सट्रैक्ट किया है और आपको आसानी के लिए कि आप इन चीज़ों को अगर एक रफ में या एक पर्टिकुलरली एथिक्स पेपर का एक रजिस्टर आप बनाएं और हर पेज में कम से कम 2 वर्ड्स को आप लिखें, हर पेज में कम से कम 2 वर्ड्स को आप लिखें, एक फर्स्ट हाफ में, एक सेकेंड हाफ में। और इसमें आप क्या करें कि आप इसकी एक डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन आप करें और कुछ एग्जांपल्स वगैरह, जो एक एटलीस्ट 1 एग्जांपल तो हर टॉपिक का आप बनाएं ही। इससे क्या होगा कि आपके पास एक कंसोलिडेटेड डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू आपके दिमाग में डेवलप होगा। यूपीएससी आपको ये बात आपको जो है आइडिया होगा, पिछले ईयर का पेपर भी अगर आप देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यूपीएससी नॉर्मली आज क्वेश्चन डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम द सिलेबस, वो टॉपिक्स को उठाता है और उसको एक्सप्लेन करने की बात करता है, उसकी डेफिनेशन की बात करता है। स्टार्टिंग में 2013 और 2016 का जो पैटर्न था वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपली डेफिनेशन दे यूज टू आस्क, बट जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन और अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करने लगा यूपीएससी, आप इसमें क्या करें कि आप एक एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन जो आप है उसकी, वो एक्सप्लेन डेफिनेशन प्लस 1-2 क्वेश्चन एग्जांपल आप उसके साथ ऐड कर लें।
तो ये आपका काफ़ी अच्छा होगा। एथिक्स का जो उस तरीके से सिलेबस के कंटेक्स्ट में आप स्टडी करते हैं, उससे ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ठीक है, आप इन टॉपिक्स में बना तो लेंगे, इसको एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड तो कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछती है कि जो सिलेबस में नहीं है। आप ये कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी इनडायरेक्टली वो क्वेश्चंस वो आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होते ही हैं। और यूपीएससी अब नॉर्मली जो इनडायरेक्ट एस्पेक्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट सिलेबस यूपीएससी का है, वो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल यूपीएससी। तो इसी कंटेक्स्ट में मैंने कुछ थोड़ा सा इस साल के क्वेश्चन पेपर्स और डिफरेंट अवेलेबल बुक्स को मैंने स्टडी करके कई सारे ऐसे वर्ड्स, जैसे ये वर्ड्स हैं, को मैंने इनकलकेट किया हुआ है और उसको रेडी किया है। अगर आप इनको पे थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको जो सिलेबस है वो काफ़ी इसमें हेल्प मिल सकती है, सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करने में और हेल्प मैनेज करने में। अब ये है कि टॉपिक्स नॉट कवर्ड इन सिलेबस बट मेंशन्ड बट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मतलब ये हुआ कि ये टॉपिक्स आपको, जैसे कि परजरवेरेंस है, यूपीएससी हैज आस्क्ड बट दिस हैज नॉट डायरेक्टली बीन बट दे आर आस्किंग। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। एक कुछ और डेफिनेशन, एटलीस्ट छोटी डेफिनेशन, कम से कम 2 लाइन की डेफिनेशन ही आप इनकी बनाएं धीरे धीरे, हर रोज़ एक दो करके, और एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, या सॉफ्ट कॉपी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बट द क्वेश्चन इज योर एफर्ट, दिस इज एग्जाम यू हैव टू क्रैक। हियर वी बिलीव इन एम्पावरिंग यू, वी बिलीव इन शोविंग द राइट पाथ, वी डोंट बिलीव। हम स्पून फीडिंग तो आपके साथ कर ही नहीं सकते, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम तो है नहीं है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ ये वर्ड्स हैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि स्पिरिट ऑफ सर्विस, कमिटमेंट, वॉइस ऑफ क्राइसिस ऑफ empathy, compassion, happiness, fear, contentment, love, reverence, devotion, faith, motivation, spiritualization, materialism, consumerism, utilitarianism, then full, intellect, mind, consciousness, vision, patience, truth, temperance, altruism, obedience, then discipline, self-confidence, courage, generosity, morale, ego, self-respect, and frustration. Okay. Creativity, innovation, anger, hate, passion, zealous, strength, peace, purity, oppression, selfless duty. These are the certain words that is not explicitly mentioned in UPSC syllabus, but UPSC, some of them UPSC has asked, some it may ask him. So UPSC question पूछे, then we start preparing. It's better start them in advance and read good. Okay, so this is what about this. Next things which we'll discuss. Next thing which we'll discuss is your sources of reading. Okay, having discussed in brief about the topics and syllabus and approach, how to approach this, we need to, what are the material, what are the sources which we refer. Okay, so few things I have given you, though many people know this, but still we believe in there are very some तो उनके लिए कुछ हमने किया है। तो फर्स्ट जो सोर्स ऑफ रीडिंग का होगा वो तो यही है कि आपको जो क्लास में नोट्स दिए जाएंगे, क्लास में कुछ क्लास नोट्स एक्सप्लेनेशन, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम, जब आप लेक्चर तो उनको डेली बेसिस पे डाउन जॉट, पहला सोर्स तो यही है, एंड इट विल एक्ट एज बेसिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द होल एथिकल कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँ, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो क्लासेस वगैरह को ज्वाइन कर लेते हैं, इस वगैरह या किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस वो कर लेते हैं, तो दे शुड फोकस ऑन व्हाट द टीचर
एटलीस्ट टीचर पे तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, इसमें क्या करते हैं कि एथिक्स की क्लास ज्वाइन कर लिया और दे आर कलेक्टिंग मटेरियल थ्रू आउट द मार्केट एंड नथिंग ग्रेसिंग। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि आप एक जगह पे ट्रस्ट करें और उसको अच्छे से सीखने की कोशिश करें। आपको जो चीज़ पढ़ाया जाता है, फॉर इंस्टेंस एथिक्स की क्लास नॉर्मली 35 डेज़ की होती है। ओके, तो इस 30 टू 35 क्लासेस में आप कोशिश ये करें कि सिर्फ एथिक्स को पढ़ें, या अलॉन्ग विद दैट मैक्सिमम एक कोई टॉपिक सब आप अलग से दिए। तो इस तरीके से आपकी जो 1 महीना 1.5 महीना 1 महीना की तैयारी होगी ना एथिक्स, ओके, आपको एटलीस्ट आपका एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट नॉर्मली ऐसा करते नहीं हैं। वो 4 दिन 5 दिन एथिक्स पढ़ेंगे, फिर वो कुछ दूसरा करने लगेंगे, तो इसमें पूरा हौच पौच हो। तो चीज़ों को एक अगर आप सिस्टमैटिक नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो क्लास नोट पहला हो गया, देन प्रिंटेड नोट वी विल प्रोवाइड सम प्रिंटेड नोट्स टू यू, सॉफ्ट कॉपी वी विल प्रोवाइड टू यू, एंड देन डेफिनेटली न्यूज़पेपर। ओके, नाउ हियर कम्स टू द आप एथिक्स कितना भी पढ़ लीजिए, थ्योरी कितना भी कैन मेमोराइज, अनलेस यू ऐड इट बाय द एग्जांपल्स, पर्सनल लाइफ एग्जांपल, करंट अफेयर्स एग्जांपल, इट हैज, आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, अगर आप इसको पर्सनल लाइफ के एग्जांपल से और स्टोरी से और करंट अफेयर से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इस ऑफ न्यूज आपका पेपर कोई यूज़ इस ऑफ। तो न्यूज़पेपर इसमें कैसे हेल्प करेगा, मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई आर्टिकल आता है, फॉर इंस्टेंस अभी 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, एक हॉस्पिटल है यहाँ पे दिल्ली में, हिंदुरा हॉस्पिटल उसका, तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो स्ट्राइक पे बैठे, क्योंकि कोविड के टाइम में वो ओवर टाइम किया था और हॉस्पिटल उनको ओवर टाइम का सैलरी नहीं दे रहा है। तो मे भी है इस ये एक केस स्टडी के तौर पे यूपीएससी उसको किस तरीके से फ्रेम कर सकती है, ये आपको अपने दिमाग में डेवलप करना है। फॉर इंस्टेंस आप किसी मेडिकल कॉलेज के जो है एमओ है, मेडिकल ऑफिसर या डीन है कॉलेज के, और वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, और आपने फिर हायर अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा कि ओवर टाइम क्योंकि ओवर टाइम किया है, तो वो हायर अथॉरिटी कहती है कि भैया अभी तो हमारे पास पहले से ही इतना प्रेशर है, कोविड के टाइम में रिवेन्यू जनरेशन हो नहीं रहा है और जीएसटी वालों को देना है वगैरह वगैरह, वो आपको आप बता दिया और कहते हैं कि आप इंटरनली मैनेज करिए, इसको कुछ रिसोर्स करिए। इस तरीके से यूपीएससी एक फ्रेम बना करके एक पैराग्राफ में आपको केस स्टडी दे दिया और फिर दे दिया कि व्हाट वी विल यू डू इन सच सिचुएशन। तो इसमें क्या मोरल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस यू डेवलप इन राइटिंग आंसर। तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों इस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। फॉर इंस्टेंस इस तरीके से एक और इशू हुआ था दिल्ली के ही द हिंदू में था कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक गर्ल ने, कॉलेज ने पहले तो फीस हाइक कर दिया, फीस बढ़ा दिया, तो एक गर्ल ने सुसाइड कर लिया। तो क्वेश्चन ये बनता है एथिकल कंटेक्स्ट में कि आप जो है आप कॉलेज के डीन हैं, प्रिंसिपल हैं और आपके कॉलेज में ऐसा इंसिडेंट हो, तो आप एजुकेशन में मोरल एंड एथिकल इश्यूज जो है उसको रिलेट करना है, वेरियस डायमेंशन आपको इसमें उस कंटेक्स्ट में करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो जो पॉलिटिकल डायमेंशन होता है उसको उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, बट हियर यू नीड अंडरस्टैंड एथिकल पर्सपेक्टिव, एथिकल थ्योरी। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। 19 में क्वेश्चन पूछा था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में, ऑफिशियल एक्ट के बारे में, आरटीआई, एक दूसरे के कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ये दोनों। तो क्वेश्चन इज दिस कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों आप पूछा था। आप लोग को शायद याद हो 2019 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पे काफ़ी ज़्यादा क्लेम किया था राफेल को लेकर। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो आई थिंक मुझे शायद नहीं बोल, चौकीदार चोर है। तो नॉर्मली यूपीएससी एस्पिरेंट भी कई सारे जब हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में तो चौकीदार चोर है पे ज़्यादा फोकस रहता है, बट द बेस है उसका जो बेसिक है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो जो हुआ क्या था कि उस राफेल का कुछ पेपर द हिंदू में पब्लिश हुआ था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के
का वॉयलेशन हुआ था उस कंटेक्स्ट में, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, बट स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा डीप में देखते नहीं हैं। बट यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन का वो फ्रेम करके बनाता है। तो कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर को आपको कैसे रिलेट करना है। वन थिंग आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए। जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपको ये रिलेट करना चाहिए कि क्या ये चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ एम्पैथी से रिलेटेड है, क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ रिलेटेड है, क्या ये मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस से रिलेटेड है। फॉर इंस्टेंस पीएनबी का जो वो हुआ था, स्कैम हुआ था, या फिर विजय माल्या जो है रन अवे फ्रॉम कंट्री। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि क्या एसबीआई की जो प्रोबिटी इन गवर्नेंस है या जो गवर्नेंस की पॉलिसी है तरीके से दे आर दे शो लैक्सिटी और लेजीनेस इन कंटेक्स्ट ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल, लेट देम। ऐसा ऐसा है क्या, इस उसको आपको चीज़ों को समझना और देखने तरीके से। ओके, फिर कुछ मटेरियल्स वी विल प्रोवाइड, सच एज वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक जीओपीटी का एक यूनाइटेड नेशन के साथ मिल करके बनाया गया है। तो इस तरीके से कुछ मटेरियल विल प्रोवाइड। सेकंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट आपको कुछ बुक्स है, लेक्सिकन तो आई विल सजेस्ट कि दो लेक्सिकन प्लस न्यूज़पेपर इज मस्ट नेसेसरी। ओनली लेक्सिकन यू कैन बी इन द रेंज ऑफ +92, लेक्सिकन प्लस न्यूज़पेपर you will be in the range of, will be the general, unless and go in various dimension, nothing but the loss of time, loss of effort. I will suggest it is only your thinking on cognitive process until and unless all waste. Okay, next thing which I will discuss is the last probably is blueprint for 140 plus in this way. Okay, so how to score 140 plus marks in the, this is what the blueprint is. You need to align with this. First and foremost, the thing is here to thing is the जो होना ही चाहिए इज द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। इसका एक बहुत बेसिक सा फंडा है, जैसे कि टॉपिक्स की एक लिस्ट होनी चाहिए आपका एथिक्स की, और उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स का मतलब है कि वेरियस डायमेंशंस ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई विल डिस्कस इन द। तो conceptual clarity is very important unless you until you don't, if you has no conceptual clarity का सिंपली मतलब ये होता है कि आपको जो चीज़ें हैं उसको बेसिक यानी उस थियरी से उसको रिलेट करना है, उसके अप्लाइड एस्पेक्ट पे जाना है, एग्जांपल्स के वेरियस डायमेंशन करना है। दिस इज व्हाट द conceptual clarity of, okay, examples and stories about the topic. Okay, now the question is write example. Question is to write example a lot, but what kind of example and how to what the dimensions put in the in your answers while you are writing. Okay, here I have certain exploration of the examples which you can develop in the process of writing of the example. For instance, normally students करते हैं जो करंट अफेयर के न्यूज़ है उसी को एग्जाम्पल लेकर के वो लिखते हैं, बट डायमेंशन कैन नॉट कम अनलेस यू हैव एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल होना चाहिए, जो हमारा लाइफ है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जाम्पल एक ऑनेस्ट का देता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मुझे एक बार घर से कुछ चीज़ मंगाने के लिए भेजा गया था, तो मैं और फिर मुझे कुछ 10 रुपये ऐसे एक्स्ट्रा मुझे पर्सनल खर्च किया गया था। तो जब मैं गया रास्ते में तो जाते वक्त वहाँ पे एक फेमस जलेबी वाला था, तो मैंने 10 रुपये की जलेबी वहाँ पे खाई। फिर जलेबी खाई और मैं पैसा देना भूल गया और फिर मैं आगे चला गया। जो सामान मुझे घर से मंगाया गया था वो मैंने ख़रीदा, और जब उसको सामान को ख़रीदते हुए देखा मेरे पास है करीब पैसे, तो मुझे याद आया कि जलेबी जो मैंने खाई वो पैसे मैंने दिए नहीं हैं। ठीक है, तो फिर जब मैं वापस आया तो उसी रास्ते में उस जलेबी वाले को मैंने 10 रुपये दिया और बताया ऐसा ऐसा। सिंपली यहाँ पे कहने का इतना मतलब है कि पर्सनल लाइफ से ऑनेस्टी की इस तरीके की स्टोरी आपकी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी की एक स्टोरी आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, और जितने भी कंपैशन है, एम्पैथी, इंटॉलरेंस है, इनकी एक सिंपल पर्सनल लाइफ स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल फिलोसोफर्स के व्यूज़
फॉर इंस्टेंस गांधी का व्यू जो है ट्रस्टीशिप पे क्या है, उसको आप कैसे कोट कर सकते हैं, गांधी का इकोनॉमी पे क्या है, ये फिलोसोफर्स का जो व्यू है ना, उसको आपको यूटिलाइज करना है। प्लेटो का जो व्यू है, बुद्धा का जो व्यू है सोसाइटी पे, उसको आपको कंक्लूजन में इंक्लूड करना है, उसको आपको बॉडी में इंक्लूड करना है। इस तरीके से एग्जाम्पल्स का डायमेंशन होना चाहिए। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स जो आप थियरी में पढ़े हुए हैं, उनके एग्जाम्पल्स आपको मालूम होने चाहिए, वेरियस एग्जाम्पल्स आपको मालूम होना चाहिए, और आप उनको कोट करेंगे। और एग्जाम्पल्स फिर उसके बाद रीजनल जैसे कोई इशू है उसका, उस पर्टिकुलर फॉर इंस्टेंस लीडरशिप का कोई एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में है, या लीडर का कोई ऐसा केस है, या इंटीग्रिटी का कोई एक ऐसा केस है, तो वो एग्जाम्पल आपको एक रीजनल एग्जाम्पल होना चाहिए, एक एग्जाम्पल आपका नेशनल होना चाहिए, एक एग्जाम्पल आपके पास इंटरनेशनल। फिर ये चीज़ें हालांकि पॉसिबल, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर समझ में आती हैं जब आप स्टार्टिंग के प्रिपरेशन, लेकिन जब आप एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो डायमेंशन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे। जब आप रोज एक दो के डेफिनेशन तैयार करेंगे एथिक्स के सिलेबस के, तो ये चीज़ें फिर जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे एथिक्स का, फॉर इंस्टेंस आपने अथी का डेफिनेशन, और उस दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ कंटेक्स्ट आ गया उसमें न्यूज़पेपर में, आपने उसको इंक्लूड कर लिया। न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। फॉर इंस्टेंस मैं 2-3 दिन पहले का एक वो बताता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस में एक कोट आया था रुडयार्ड किपलिंग का। उन्होंने कहा था कि वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग्स यूज बाय द ह्यूमन काइंड, वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग्स यूज बाय द ह्यूमन। तो इसका जो ये एक ये है कोट है, यूपीएससी इस तरीके की कोट को पूछता है, यूपीएससी इस तरीके की कोट को पूछता है, और या फिर इसको आप रियलाइज कर सकते हैं। यदि और कुछ दिन पहले द हिंदू में कोट आया था कि व्हेन यू ओवरकम योर ईगो यू रियलाइज योर सेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी अचीव थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। न्यूज़पेपर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन योर एथिक्स स्टडी, पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स और करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में। जो कोई भी मैगजीन्स और कोई भी कोचिंग मटेरियल विल नॉट बी सफाइज टू योर पर्सनल एफर्ट इन टर्म्स ऑफ, it should be more more comprehensive or strategic, and a right approach to be behind this. Similarly, examples must be in the social dimension, economic dimension, political dimension, administrative dimension, public interest का जो dimension। then again ancient का example, for instance कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस पे, अगर कंसाइंस पे क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन आप ये इंक्लूड कर सकते हैं करंट में कि गोपीनाथ टंडन जो एक आईएएस थे, उन्होंने आईएएस से रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि जो कश्मीरी पीपल के जो वॉइस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, दैट हैज़ बीन अल्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ इस तरीके से उनका अपना वो था, तो उन्होंने सिविल सर्विस से रिजाइन कर दिया। ये करंट अफेयर का एक एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली गांधी ने चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद नॉन कोऑपरेशन को स्टॉप कर दिया था, हाल्ट कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट पास्ट से एग्जाम्पल्स को कोट करना है, और दैट एग्जाम्पल का डायमेंशन विद इन द क्वेश्चन वेरियस होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन आप पास्ट का दें, एक क्वेश्चन आप रीजनल का दें। एक एग्जाम्पल अगर आप फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन में 4 से 5 आप दे रहे हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल आपका जो है मिडाइवल का अगर है, तो दूसरा एग्जाम्पल आपका इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडर्न के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल्स एक दूसरे से इंटरलिंक भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई एग्जाम्पल है तो इट कैन बी एंशियंट, इट कैन बी मिडाइवल। फॉर इंस्टेंस चाणक्य का कुछ आइडियाज़ हैं, ठीक है, अबाउट द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो उसको अगर आप आज के कंटेक्स्ट में कोट करते हैं तो दो पब्लिक इंटरेस्ट हो गया प्लस एंशियंट। तो इस तरीके से इंटरलिंकेजेस ऑफ द एग्जाम्पल्स itself is a very big thing. Then answer must be substantiated by the theories of the ethics. अगर आप आंसर लिख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इज emotional intelligence, क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस, तो जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसका बेसिस should be revolved around the concept of the emotional intelligence, should be revolved around the concept of the emotional, unless and until it is not related with the basic concept or basic theory of the particular topic, you are not going to get good. And यही थोड़ा थोड़ा जो एफर्ट है ना, थोड़ा थोड़ा ये जो एफर्ट है, दिस ओनली विल गिव यू 1 marks
1 मार्क्स 2 मार्क्स। इमेजिन हर क्वेश्चन में अगर आप 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, यू आर 30। This is what the age you are going to get only on the behalf of this small. Everybody write answer. Everybody write general answer 75 to 90 marks. Telling you, one who cracks prelims, के पास इतना knowledge होता है कि they can get 75 to 90 marks. But if you want to score 140 plus marks, then you have to come with various dimensions of this answer. Right? Various dimensions. This answer must be substantiated by the theory of ethics. Various theories you must put them while in terms of conclusion in body, substantiate, counter argument which you do. For instance, there was a question that on Plato, unexamined life is useless, something like that. So unexamined life is yes, okay, it's okay. You have to agree with this. That yes, you're right. क्योंकि हमारी लाइफ का हर एक्शन एग्जामिनेट होना चाहिए, बट काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी आपको किसी स्कॉलर्स के व्यू को सपोर्ट करना होगा, कि क्योंकि कोई भी स्कॉलर का व्यू 100% परफेक्ट तो है नहीं, ठीक है। जो दूसरे स्कॉलर्स हैं उनके भी अपने कुछ व्यू हैं जो एक्सेप्टेड हैं और मॉरली एथिकली एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड ओवर, तो उनके व्यू से हम उनको काउंटर कंक्लूजन में करेंगे। आपका आंसर जो है मल्टी डायमेंशन, एक डायमेंशन मल्टी आस्पेक्ट होना चाहिए, एक व्यू नहीं होना चाहिए, व्यू होना चाहिए इस तरीके से। देन इंटरलिंकिंग ऑफ यूनिट, इंटरलिंकिंग ऑफ यूनिट्स का मतलब ये होता है कि एथिक्स पेपर में आपके 6 से 7 यूनिट, ठीक है, उन 6 से 7 यूनिट्स को आप इंटरलिंक करें। फॉर इंस्टेंस इमोशनल इंटेलिजेंस पे, फॉर इंस्टेंस लीडरशिप पे क्वेश्चन आया, ठीक है, लीडरशिप पे क्वेश्चन आया, दैट इज ड्रॉप करेक्टिव, तो इसको लीडरशिप को आप लिखें, बट हाउ कैन यू लिंक इट विद इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके, how can you link it with emotional intelligence, how can you link it with the theories of the first and second unit of the syllabus। अब इसको आप लीडरशिप को कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से आप लिंक कर सकते हैं। अ गुड इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर जो होता है, इंटेलिजेंट क्वालिटी ये होती है कि ही विल आइडेंटिफाई और एम्पथाइज योर व्यूज, आइडेंटिफाइज विद योर व्यूज। once he is emotionally intelligent and identifies the your views, he can manage the conflict, can manage the your problem very easily or comfortably। Unless I do not understand your views or your problem, how can I understand, how solve the problem, or how can I can they solve that particular problem? It is not possible। So once you are writing the leadership topic, topic leadership, which UPSC may ask in terms of big sentence and big worded, बड़े बड़े वर्ड दे देगा वो और कहेगा कि इलस्ट्रेट एग्जाम्पल, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वो आपसे लीडरशिप के बारे में पूछते हैं इन डिटेल। आपको जो सरफेस है ना उस पे नहीं जाना है, कोर एरिया क्या है लीडरशिप को फेस। फॉर इंस्टेंस तो कहने का मतलब ये है कि यू नीड टू इंटरलिंक विद द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अदर सिलेबस। इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड का क्या रोल होगा, यू डोंट मेंशन एक्सप्लिसिटली द वर्ड एप्टीट्यूड और डोंट मेंशन explicitly what the emotional intelligence, but utilize those concepts and write it in terms of leadership. So your answer this way will be more good looking, more marks fetching and multi-dimensional, okay। Then persistence, these things will come only through the persistent practice। आप कितना भी इन सब चीज़ों को पढ़ लें, मेरी बातों को सुन लें, unless you bring it into in terms of practice, it is of bring in terms of this practice, it will be of okay। So this is what in simple was about the topic of this is what in simple about the topic, this is what simple about the topic in discussion, and I hope you will get it next time when come to the topic, next when we will deal with the question, we will deal with the question analysis, previous year question, and then tell you how to do the things, or understand how the UPSC does ask the question, what is the structure of the question, nature of the question, and it is a more, then it will be more clear to you as to which direction or which path you has to go। So see you the next time, be energetic, be positive, see you next class। Thank you very much।